topic is also set for class 11. In my previous video, I made you understand the type of sets. Today, I'll make you understand to represent the set. Means set को हम कैसे लिखते हैं, कितने फॉर्म में सेट को लिखते हैं. The representation of set. The representation of set. Set is represented by two ways. Number one, in roster form. In roster form, and number two, in set builder form. Set builder form. Right? तो सेट को हम दो वे में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में. इन रोस्टर फॉर्म होता क्या है? रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं. एलिमेंट्स आर रिटेन. अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल, ए इज द सेट ऑफ ए ई आई ओ यू. यानी डायरेक्ट हम एलिमेंट्स लिख सक रहे हैं. We are listed the elements. To write the elements means we are listed the elements. But in set builder form, we write the qualities of the elements. Means elements हैं क्या? तो अगर क्वालिटी की बात करें, the qualities of the elements are listed in which form? In set builder form. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस सेम एग्जाम्पल को मैं अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ. रोस्टर फॉर्म में क्या है? ए ई आई ओ यू. तो इन एलिमेंट्स की क्या क्वालिटी है? इन एलिमेंट्स की क्वालिटी है कि ये वोवेल्स है. क्या है ये? वोवेल्स है. तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? A is the set of x. जैसे मैंने यहाँ पे x बनाया. A is the set of x. दो पॉइंट बनाऊंगा. Where means जहां. X is the vowel. X is the vowel of English alphabet. English alphabet. Right, students? So just now I have told you how to represent a set. कि सेट को हम कैसे लिखें. तो सेट को लिखने की जब भी बात आएगी तो सेट को हम दो फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. स्टूडेंट्स, some examples on the representation of set. Suppose D is the set of 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, etc. This is the roster form. As you know that all the elements are written. तो इसको पहचान करके कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व किया गया है. Now we are going to write it in set builder form. Writing as set builder form. So that will be B equal to the set of S. जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स. इन न्यूमरेटर we have taken all the natural numbers from 1 to 5, but at the place of denominator 1 is added to each and every natural number. So if we take the values of n means natural number from 1 to 5, then at the place of denominator for 1, at the place of denominator that will be 1 plus 1, for 2, 2 plus 1, for 3, 3 plus 1. तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे बनाए? यानी इसको एक फॉर्मूलाइज करके हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में. तो B इक्वल टू द सेट ऑफ X, वेयर X इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1. यानी कि ऊपर अगर नेचुरल नंबर लेंगे, नीचे उस नेचुरल नंबर में एक ऐड करेंगे. वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि स्मॉल n किसका एलिमेंट है? नेचुरल नंबर का. एंड द रेंज
builder form. Have you got it, student? So one more example. C equal to the set of 1, 8, 27, 64, 125. Elements are written. This is the roster form. So to write it into set builder form, this is the cube of 1, this is the cube of 2, this is the cube of 3, this is the cube of 4, and this is the cube of 5. So we have taken natural numbers from 1 to 5 and we have written their cubes. तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एलिमेंट्स की इनइक्वालिटीज को, इन्हीं प्रॉपर्टीज को लिखना है, यानी उसको डिफाइन करना है. C is the set of x where x equal to n cube. क्या होगा? n cube means नेचुरल नंबर का क्यूब. अब नेचुरल नंबर n क्या है? नेचुरल नंबर मीन्स n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N. नेचुरल नंबर सेट का एलिमेंट है और n की रेंज हो गई 1 से लेकर 5 तक. Got it, students? This is the roster form. This is the set builder form. This is again the roster form, and this is the set builder form. Now, students, we take the new topic, subset of a given set. Subset of a given set. Suppose A and B are two sets. These are two sets, right? And all the elements of set A are in set B, but all the elements of set B are not in set A. Then A is the subset of set B, and we write this in symbolic form: A is subset of B. I repeat again: if A and B are two sets and all the elements of set A are in set B, but all the elements of set B are not in set A, then A is the subset of set B. In this condition, B is called the superset of A. In this condition, set B is called the superset of A. Right? Now, note. One important note in this means if A is subset of B and B is subset of A, it means A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है. और अगर ऐसा है तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है कि A इक्वल टू B. तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर दो सेट आपस में बराबर हैं, यानी उनके एलिमेंट्स एक दूसरे में बिलोंग करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? सबसेट कहलाते हैं. राइट? थैंक यू. This was the topic of subset. Now, to find the number of elements, before this, I give you one example. Suppose A is the set of 1, 2, 3. Now, to write the subsets of A, subsets of A are, सबसेट क्या होंगे? पहले एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे. These all are the subsets of set A. अब 1 और 2 को लेंगे, 1 के साथ 3 को लेंगे, 2 के साथ 3 को लेंगे, फिर तीनों को एक साथ लेंगे. ये सभी A के सबसेट कहलाते हैं. How many are these? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 5 is the subset of all the sets. ध्यान देना, 5 is the subset of all the sets. यानी 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है. Now, number of elements of subsets of a number of subsets of a set. Number of subsets of a set. इसी सेट के सबसेट्स की संख्या हम एक फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है आपका? 2 to the power n. 2 to the power n, where n is the number of elements
ऑफ सेट मीन जिस सेट के भी हम सेट सबसेट निकालने जा रहे हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। जैसे फॉर एग्जांपल हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दैट आर 3। अगर हम इसके सबसेट की संख्या निकालें नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएगा 2 to the power 3, 2 to the power 3 यानी 8। लेट वी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। I told you that 5 is the subset of all the sets. Now students, I am going to make you understand the universal set. Universal set होता क्या है? Universal set जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। अगर इसके वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम में हम इसको रेक्टेंगुलर कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल इफ ए बी सी डी आर सम सेट्स टू अस एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी मींस सभी सेट्स के एलिमेंट एक सेट में बिलोंग करते हैं, तो वो सेट इन सब का क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। अगर हम दो सेट की बात करें और एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं तो वो उसका सुपर सेट कहलाता है। लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा सेट हैं और उन सबके एलिमेंट्स एक नए सेट में हैं, एक दूसरे सेट में है, तो वो उनका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट दिए गए 3 या 3 से ज्यादा सभी सेट्स का सुपर सेट होता है। राइट? थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज फाउंड ऑन यूनिवर्सल सेट। सपोज ए बी सी एंड डी are some sets and their universal set is U. Then the complementary set of A, it is represented by A dash and this is calculated by U minus A, means U के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो A में ना हो। यानी कि U के उन एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे जो A में ना हो, या यूं कह लीजिए कि U में से A के सारे एलिमेंट निकाल देंगे, जो बचेंगे वो क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। राइट? मींस अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालने जा रहे हैं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। राइट? जो ए में नहीं है, मींस ए के सारे एलिमेंट छोड़कर यू के सारे एलिमेंट। मींस अगर हम बी डैश निकालें, we will calculate it by u minus b, means u के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिसमें b के एलिमेंट्स ना हो। अगर c का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालें तो u minus c, u के उन एलिमेंट्स का सेट जिनमें c के एलिमेंट्स ना हो। ऐसे d डैश मींस d के उन सभी एलिमेंट्स का सेट, u के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिसमें d के एलिमेंट्स ना हो। अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट्री सेट का फिर से कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो वही सेट आ जाता है। कैसे आ जाएगा? जरा ध्यान देंगे। ए डैश क्या बनेगा आपका? ए डैश बनेगा u माइनस ए, और इसका फिर से हम कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो इसको हम फिर u माइनस ए करेंगे, यानी कि u माइनस ए। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो u नेगेटिव हो जाएगा, a हो जाएगा पॉजिटिव, u से u कट जाएगा यानी a आ जाएगा। मीन्स complementary set of a given complementary set, that is the set itself. Now next topic is power set of a set. Students ध्यान देंगे, power set of a set. Suppose we have set A with us and the set A is the set of elements A, B and C. Then power set of A will be represented PA and it is read as power set of set A. अगर डिफाइन करें, पावर सेट को डिफाइन करें तो द पावर सेट ऑफ अ सेट
इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, यानी दिए गए सेट के जो सबसेट बनेंगे अगर उनको हम एलिमेंट्स बनाए तो क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। इन दिस रिगार्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट आर सेट्स इटसेल्फ। तो अगर हम पावर सेट को लिखने की बात करें तो पावर सेट ऑफ ए दैट विल बी ए का सेट, बी का सेट, सी का सेट, ए बी का सेट, ए सी का सेट, बी सी का सेट और जी ए बी सी का सेट। हाउ मेनी आर दीज? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5। The set of all the subsets of a given set, that is called the power set of the set. So students, today I made you understand कि how to write a set means how to represent a set. That are two methods, some types of set, subset, power set, complementary set. I hope that you people will like my video, share my video and please subscribe my video. नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का जो भी सेट का जो भी पोर्शन बचता है, इंटरवल सेट या फिर रीजनिंग मेथड से सेट्स को कैसे प्रूव करते हैं वो आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।